Good morning, children. Today we will learn about the new chapter, that is D and F block elements. The D block element is also called as transition elements or transition metals, and F block element is also called as inner transition metals, and there are two series in the F block elements lying at the bottom. They are called lanthanide and actinide series. So children, first we will see about the transition elements or transition metals. So why are they so called? Actually, if you see the periodic table, then in between second group and 13th group, second group means the alkaline earth metals and 13th group means the boron family, that is P block elements. In between we have 10 groups of elements starting from third group to 12th group. These 10 groups of elements are dominated by the metallic elements, so that's why they are called transition metal. Now they are called transition, they are metallic. Why are they called transition? They are called transition because they start with more metallic elements on left hand side and then they ends with more non-metallic elements on right hand side. So they start with more electropositive elements and they ends with more electronegative element, you can say. So that's why they are called transition elements. Since they all are metals, so that's why they are called transition metals. Now, as you have seen in P block elements that we study the P block elements group wise because they exhibit greater group wise similarity. There is regular gradation in their group wise properties. Now, in case of transition metals, we will study their properties in the series, although they exhibit group wise similarity also, but they exhibit more horizontal similarities as compared to vertical or group wise similarities. So there are four series of elements: 3D series, that is fourth period, 4D series, 5D series and 6D series. The general electronic configuration of D block element is N-1D 1 to 10 and NS 1 or 2 1 to 2. So the four series of elements are 3D series, that is fourth period, starting from scandium 21 atomic number, this is the first transition metal, and ends with zinc having 30 atomic number. 4D series, that is fifth period, starting with yttrium 39 and ends with cadmium 48. Now if you see 5D series, this is sixth period, then first you have lanthanum atomic number 57 and then hafnium 72. So here is gap of 14 elements and these elements are lying on the bottom. They are called lanthanides, starting from cerium to lutetium 58 to 71. So these are the 14 lanthanides. Then फिर 72 आ जाएगा. And again we have transition metals up to mercury 80. Similarly 5D, this is 60 series,
In 60 series means 7 period. It starts with actinium 89, atomic number 89. Then this is kurchatobium 104, hahnium likewise. So here again, in between 89 and 104, there is gap of 14 elements for actinoid elements lying at the bottom, and they start with thorium 90 up to lawrencium 103. Then again 104 is transition metals. So children, in this way there are 4 series of transition metals. Now we will see their electronic configuration. As we have seen that their general electronic configuration is n-1, d1 to 10 and ns1 to 2. So all the elements in which the valence electron enters into d orbitals of penultimate cell. Penultimate cell means one less than last cell, one less than valence cell, that is called as penultimate shell. So here the discriminating electrons or valence electrons enters into d orbitals of penultimate shell. So all those elements are there is more stable ion if they contain some unpaired electrons in d orbital, or if they contain some half-filled d orbitals, then they are called transition metals because they exhibit all the properties of transition metals. But we have at the same time, we have some elements like zinc, cadmium and mercury. They don't have any half-filled d orbitals, so they do not exhibit the characteristic properties of transition metals. Characteristic properties में क्या होंगे? They form colored compound, they exhibit paramagnetic behavior, they act as catalyst, they form complex compound, they have high enthalpy of atomization. तो ये सारी प्रॉपर्टीज जिंक, कैडमियम और मरकरी में नहीं मिलती हैं, इसीलिए हम इनको स्यूडो ट्रांजिशन मेटल या फॉल्स ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। अब हम बच्चों चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो जैसा कि आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में भरेंगे? पेनल्टीमेट सेल में। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 4th पीरियड में जो पहला एलिमेंट है वो है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, एल्कली मेटल है। फिर उसके बाद बच्चों आएगा कैल्शियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 20। और इसके बाद ही शुरू होता है ट्रांजिशन मेटल 4th पीरियड में। तो अब 4s2 होने के बाद अकॉर्डिंग टू बाउ रूल जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो 3d में जाता है। तो स्कैंडियम 21 मतलब 3d1, 22 मतलब d2, 23 मतलब d3। अब 24 मतलब d4 नहीं, यहाँ एक्सेप्शंस हैं, बिकॉज d4 इज वेरी नियर टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d5। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आएगा और ये 3d5 हो जाएगा हाफ फिल्ड, बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। अगेन 4s to 3d5, 26 का d6, 27 d7, 28 d8, 29 का d10। यहाँ अगेन एक्सेप्शन होगा। d9 मीन्स इट इज़ वेरी क्लोज टू कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन d में आएगा और ये कंप्लीटली फिल्ड होगा। जिंक के केस में बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10। सिंस यहाँ पर कोई भी हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए जिंक जो है ये ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करता है और इसको हम स्यूडो ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। कई बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर में भी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो 3d10 4s1 होता है। तो चूँकि यहाँ भी d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है तो कॉपर शुड नॉट बी द ट्रांजिशन मेटल, इसको भी स्यूडो ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए।
लेकिन हम जानते हैं कि कॉपर ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। उसका कारण ये है कि ट्रांजिशन मेटल का जो मोर स्टेबल आयन है क्यूप्रिक आयन, इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 है और इसमें एक हाफ फिल d ऑर्बिटल रहता है। इसीलिए ये ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करता है। तो यहाँ से जो ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन है वो आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि द एलिमेंट और इट्स मोस्ट स्टेबल आयन विच कंटेन्स एट लीस्ट वन half filled d orbital or partially filled d orbitals, they are called transition metals, क्योंकि वो ट्रांजिशन मेटल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करेंगे। इसके बाद एटॉमिक एनायनिक रेडियाई अगर देखें तो जैसा हमने बताया कि यहाँ पर जो भी स्टडी हम करेंगे वो सीरीज़ में करेंगे। तो 3D सीरीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए 3D सीरीज़ के जितने मेंबर्स हैं इनका नाम याद कर लीजिएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। अगर इनका एटॉमिक साइज़ आप देखें पिकोमीटर में दिया हुआ है 162, 147, 134, 127 और फिर यहाँ पर देखिए 126, 126, 125 और फिर 124 और लास्ट में 138। तो जो लेफ़्ट टू राइट जाने पर किसी भी सीरीज़ में जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ करती है। ये आपने पी ब्लॉक में भी पढ़ा है। ये जनरल ट्रेंड है कि ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन एनी पीरियड जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ करता है। लेकिन यहाँ जो वेरिएशन है वो रेगुलर नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरू में जो साइज़ का डिक्रीज़ है वो ज़्यादा है और बीच में जो एटॉमिक रेडियस है वो कांस्टेंट हो जा रहा है और लास्ट में ये वापस बढ़ता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इर्रेगुलर बिहेवियर क्यों देखने को मिलता है? तो एक्चुअली अगर आप देखें तो यहाँ पर बच्चों जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल में भरता है और जब डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग जो हमारा प्रोटॉन है वो कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में जाएगा। तो चूँकि शुरू में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसीलिए जो साइज़ में डिक्रीज़ है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है। चूँकि इनिशियली डी सबसेल में 1-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो शील्डिंग इफेक्ट डी इलेक्ट्रॉन्स पोज करते हैं फॉर मिनिमाइजिंग द न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो कम होता है। लेकिन जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे शील्डिंग भी बढ़ती है और बीच में न्यूक्लियर अट्रैक्शन और शील्डिंग इफेक्ट ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर साइज़ सेम है। और लास्टली क्या होता है कि मिडिल के बाद जब पेयरिंग शुरू होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी काम करता है बच्चों। तो लास्ट में जिंक पर जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है दैट इज़ मोर डोमिनेंट। तो अगर आप लास्ट में देखें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मिलेगा जो कि डोमिनेंट होगा एट द एंड, और इसकी वजह से जो जिंक की साइज़ है वो एक बार फिर क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर हम ग्रुप में देखें बच्चों तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज होता है। आपने पहले ये पढ़ा है कि किसी भी ग्रुप में जब हम डाउन ग्रुप जाते हैं तो उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ती है, कारण नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ अगर आप गौर करें तो स्कैंडियम का जो एटॉमिक रेडियस है 162 है, वाइट्रियम का 180 है और लैंथेनम का 187। तो थर्ड ग्रुप में तो ये बढ़ रहा है। लेकिन जब आप फोर्थ ग्रुप में जाते हैं टाइटेनियम का 147, जिरकोनियम का 160, लेकिन हैफिनियम का 158 ही है। मतलब बढ़ने के बजाय घट करके लगभग उतना ही रह गया। सिमिलरली अगर आप फिफ्थ ग्रुप देखें, वेनेडियम 134, नियोबियम 146, टेंटेलम आल्सो 146। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि नियोबियम एवं टेंटेलम इनकी साइज़ जो है वो सेम है। बच्चों हम इसको
कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? यहाँ तो बढ़ा, लेकिन यहाँ पर जो 4D और 5D के मेंबर्स हैं किसी एक ग्रुप के, इनकी साइज सेम है, सिमिलर है। इसका कारण ये है कि यहाँ जो 5D में लेंथेनम के बाद आपने अभी देखा 57 के बाद हैफनियम 72 के बीच में यहाँ पर 14 जो 4F के इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, क्योंकि 4F की शील्डिंग बहुत पुअर होती है, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो चूंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ ज़्यादा होगा, जिसको हम लेंथेनाइट कंट्रैक्शन बोलते हैं, तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन फिनोमेनन की वजह से जो साइज बढ़नी चाहिए वो क्या हो गई, डिक्रीज होकर के 4D के मेंबर के बराबर ही रह जाती है। तो 3D से 4D जाने पर बढ़ता है, लेकिन 4D से 5D जाने पर जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग बराबर होता है। दिस इज ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का कारण होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय 4F इलेक्ट्रॉन। The nuclear attraction for valence electron increases on moving from left to right. तो इस फेनोमेनन को लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहा जाता है। बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। चूंकि दे आर स्ट्रॉन्ग मेटल, इनके बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसी वजह से इनका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज़्यादा होता है। व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? बच्चों, अगर हम किसी मेटल को सॉलिड स्टेट से उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दें तो हम उसको क्या बोलते हैं? एटमाइजेशन बोलते हैं। अब इस एटमाइजेशन में जो एनर्जी लगती है उसको हम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होता है। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट अगर आप जाइए तो मेल्टिंग पॉइंट आप देखेंगे कि पहले इंक्रीज करता है और फिर बीच में मैक्सिमम पहुंचता है और फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू करता है। तो हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन्ड? तो ये मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है कि फर्स्ट इंक्रीज रीचेस टू मैक्सिमम इन द मिडिल एंड देन डिक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड। सो दिस कैन बी रफली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्योंकि शुरू में जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है डी सब सेल में, तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की संख्या है वो क्या होती है? बढ़ने लगती है। तो जितने ही ज़्यादा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे उनका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन उतना ही ज़्यादा होगा। चूँकि मिडिल के बाद पेयरिंग शुरू होगी तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की जो नंबर है वो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, और कम होने की वजह से उनका मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन भी कम हो जाएगा। यही कारण है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट फिर डिक्रीज करने लगता है। और जिंक पर जाके चूँकि कोई भी यहाँ पर डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं है, सारे ऑर्बिटल फिल्ड हैं डी के, तो इसीलिए यहाँ पर जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो बहुत ही पुअर होती है। अब यहाँ पर बच्चों अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आपको बीच में मिल रहा है। मैग्नीज टेक्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट अचानक डिप कर जाती है, ये डिक्रीज कर जाती है। इसका कारण है कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो जाता है, और हम जानते हैं कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है। तो इसीलिए जो डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मैग्नीज और टेक्नीशियम में डी के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे तो इनका जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन है वो क्या होता है? कम हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है और मेल्टिंग पॉइंट डिप कर जाती है। सो बच्चों, आज यही इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।